Dear students, welcome to today's lecture, and the today's lecture is on high yield point series number 24. जैसे कि आपको पता है, मैं ये हाई yield points की सीरीज़ के वीडियो डाल रहा हूँ फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर नीट एंड JEE मेन एंड एडवांस्ड। और आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैं लॉज ऑफ मोशन के 3 वीडियो डाल चुका हूँ और ये उन्हीं 3 वीडियोस की कंटिन्यूएशन में वीडियो नंबर 24 और लॉज ऑफ मोशन में ये लेक्चर नंबर 4 है। और इससे पहले जो नंबर 3 लेक्चर था लॉज ऑफ मोशन का, उसमें मैंने 32 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। आज मैं शुरू करता हूँ फ्रॉम पॉइंट नंबर 33 एंड दिस इज़ ऑन फ्रिक्शन। Now what is friction? The opposing force which comes into play when one body moves or tends to move over the surface of another body is called force of friction. जब तक कोई बॉडी रेस्ट पे है तब तक कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होती। ये सिर्फ तब लगती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, और ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। नाउ कॉजेज ऑफ मोशन, 3 कारण होते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। नंबर 1, मॉलिक्यूलर एडहियन। एडहियन लिया मैंने फ्रॉम एडहेसिव फोर्स। ऐसा है जो 2 सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं। आपको पता है कि एवरी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो जब 2 सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल कह लो, जो एटम कह लो, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कह सकते हैं force of adhesion or molecular adhesion. So that is one of the reasons of the force of friction. And the second reason is the roughness of the surfaces in contact. जो 2 सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, देखने को चाहे वो स्मूथ लगें लेकिन उनमें बहुत सी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, यानी कि वो सरफेस रफ होते हैं, और इस रफनेस के कारण भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। और तीसरा है डिफॉर्मेशंस। जब एक बॉडी दूसरी पे चलती है देन डिफॉर्मेशंस आर प्रोड्यूस्ड एंड दे कॉज फ्रिक्शन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड प्लोइंग इफेक्ट। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करना शुरू नहीं करती तब तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? इट इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले so long as there is no motion. And remember, the static friction is a self-adjusting force. It goes on increasing as the applied force is increased and is always equal and opposite to the applied force so long as there is no motion. But the maximum value of the static force of friction when one body just begins to move over the surface of another body is called limiting friction, or once the applied force becomes equal to or slightly greater than the limiting friction between the 2 bodies in contact, then the actual motion starts. Then kinetic or dynamic friction comes into play. So what is kinetic or dynamic friction? The force of friction which comes into play when one body actually moves over the surface of another body is called kinetic or dynamic force of friction. और ये 2 तरह की होती है। नंबर 1 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नंबर 2 रोलिंग फ्रिक्शन। What is sliding friction? It is the force of friction which comes into play when one body slides over the surface of another body. And what is rolling friction? It is the force of friction which comes into play when one body rolls over the surface of an other body. And remember, a rolling friction is less than sliding friction. And kinetic or dynamic friction is slightly less than the limiting force of friction. Now, the coefficient of friction. Coefficient of friction is defined as the ratio of the limiting force of friction to the normal reaction. और ये जो coefficient of friction है इसको कई बार बोल देते हैं coefficient of static friction and is denoted by μs. और इस तरह coefficient of kinetic friction is the ratio of the kinetic force of friction to the normal reaction. अब normal reaction तो दोनों केसेस में सेम है, लेकिन क्योंकि kinetic friction जो है that is less than the limiting force of friction, therefore
the coefficient of kinetic friction is less than the coefficient of static friction. इसी तरह coefficient of rolling friction भी होता है, that is equal to the ratio of the rolling force of friction to the normal reaction, और ये kinetic friction से भी कम होता है. So याद रखो म्यू आर इज लेस देन म्यू के इज लेस देन म्यू एस, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उससे कम कोएफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन और सबसे कम कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. और जो फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उससे ज़्यादा होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ फ्रिक्शन इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और जैसे कि आप जानते हैं व्हाट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट और अगेंस्ट इट depends from in moving a body from one point to the other depends upon the path along which the body is moved. Then friction is a necessary evil. Why necessary? Because it has advantages. In fact, life is impossible without friction. And why is it evil? Because it has some disadvantages. So because friction has both advantages as well as disadvantages, therefore we call it as a necessary evil. Then angle of friction. The definition of angle of friction is as follows. Angle of friction is defined as the angle which the resultant of the limiting force of friction and the normal reaction makes with the normal reaction. I repeat this definition. Angle of friction is defined as the angle which the resultant of the limiting force of friction and the normal reaction makes with the normal reaction. Then you have angle of repose. मान लो आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, आप उस पर कोई बॉडी रखते हैं और बॉडी नीचे की तरफ नहीं मूव करती. नाउ यू गो इन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन. ए स्टेज विल रीच व्हेन द बॉडी विल बी at the verge of sliding or moving down along the inclined plane. The angle of inclination of the inclined plane when a body placed on it just begins to move is known as the angle of repose. And remember, angle of friction for a given pair of friction, angle of friction equal to angle of repose, because we can prove that mu equal to tangent theta, where theta is the angle of friction, and for a given pair of surfaces mu is also equal to tangent beta, where beta is the angle of repose. अब for a given pair of surfaces का मतलब कि mu की वैल्यू सेम, because the value of mu depends upon the nature of the two surfaces in contact. और अगर हम दोनों सरफेस सेम रखते हैं तो म्यू की वैल्यू सेम है. दैट मीन्स टेंजेंट थीटा मस्ट बी इक्वल टू टेंजेंट बीटा, और थीटा शुड बी इक्वल टू बीटा. दैट मीन्स द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. देन एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस. मान लो ये जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी है, इट इज़ अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस. इस पर मैंने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास mg है, और मैं इसको मूव करना चाहता हूँ टुवर्ड्स राइट, तो मुझे राइट की तरफ इस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. नाउ अगर तो ये सरफेस होता स्मूथ तो इस पर फोर्स लगनी थी वेट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन and perpendicular to of course the horizontal surface that is in the vertically upward direction. और अप्लाई ये R ने बैलेंस कर दिया mg को, और सिर्फ हमें अप्लाइड फोर्स अप्लाई करनी पड़नी थी बॉडी को मूव करने के लिए टुवर्ड्स राइट, और अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करना होता तो टुवर्ड्स लेफ़्ट. लेकिन अब क्योंकि सरफेस जो है रफ है, देयरफॉर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल आल्सो कम इनटू पिक्चर. और अगर मैंने इसको राइट की तरफ मूव करना है बाई अप्लाइंग ए फोर्स एफ, तो जो आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट ऑलवेज अपोजेस मोशन. इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. सो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसका नाम मैंने रखा स्मॉल एफ, एंड इट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन. और आपको अभी मैंने ऊपर बताया कि इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, देन म्यू इक्वल टू एफ ओवर आर, एंड देयरफॉर एफ इक्वल टू म्यू आर. और आर किसके बराबर आ गया? mg. क्यों? देयर इज नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट मीन्स द नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, एंड दैट इज पॉसिबल इफ आर इज इक्वल टू mg. तो आर की जगह मैं mg पुट कर दूँ तो एफ आ गया म्यू आर इक्वल टू म्यू mg. नाउ net accelerating force is applied force minus the force of friction. Now applied force is capital F
and the force of friction is small f, and therefore acceleration produced in the body, that is small a, equal to कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाई एम। कैपिटल एफ को वैसे लिख दिया और स्मॉल एफ की जगह जैसे मैंने ऊपर आपको बताया म्यू एम जी ओवर एम। अब एम दोनों के नीचे आ गया तो इट विल बी एफ ओवर एम माइनस म्यू जी। सो दैट विल गिव अस द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी और ए ब्लॉक ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। मान लो आपके पास इंक्लाइन प्लेन है जिसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, इट इज़ ग्रेटर दैन दी एंगल ऑफ रिपोज फॉर द गिवन पेयर ऑफ सरफेस। क्योंकि अगर एंगल ऑफ रिपोज कम होगा तो फिर बॉडी अपने आप नीचे की तरफ नहीं आएगी। अगर लेके आना तो हमें फिर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे हमने ये पढ़ना है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ रिपोज फॉर द गिवन पेयर ऑफ सरफेस, तो बॉडी अपने आप ही नीचे की तरफ मूव करेगी और हमने ये देखना है कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी नीचे की तरफ। सो if the mass of the block is m, then the various forces acting on the block as shown in the figure are its weight mg acting in the vertically downward direction through its center of gravity। दूसरी फोर्स है कैपिटल आर, द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। और अब ये जो एम जी है, आई कैन रिजॉल्व दिस इनटू टू रेक्टेंगुलर components mg cos theta in a direction opposite to r and mg sin theta in the downward direction parallel to the surface of the inclined plane। और क्योंकि सरफेस रफ है तो नीचे की तरफ आना जब इसने तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी इन दी upward direction, and if small f is the force of friction it will act in the upward direction parallel to the surface of the inclined plane, and because mu equal to f over r therefore f equal to mu into r। और इस केस में आप देख सकते हैं r must be equal to mg cos theta because there is no motion perpendicular to the surface of the inclined plane। so r हो गया mg cos theta, f आ गया mu r की जगह पुट कर दिया मैंने mg cos theta। सो जो नेट फोर्स अब नीचे की तरफ लगी जिसके कारण एक्सेलरेशन पैदा हो रही है दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज दीज टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स ओवर मास दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर एम इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा ओवर एम। एम ऊपर से मैंने कॉमन निकाल लिया, उसको कैंसिल कर दिया और फिर जी कॉमन निकाल लिया तो ए आ जाएगा जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और बेटा अगर सरफेस हो स्मूथ, फ्रिक्शन ना हो तो हमने एक्सेलरेशन अगर निकालनी है तो हम म्यू की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पे म्यू ए आ जाएगा सिंपली जी साइन थीटा। कब? इफ देर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, और यू कैन से द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ। देन रिटार्डेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। मान लो आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, इसको हम नीचे एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन कुछ वेलोसिटी देते हैं ऊपर की तरफ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें रिटार्डेशन पैदा होगी। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर दैट रिटार्डेशन। तो मान लो इस ब्लॉक या बॉडी का मास m है, देन द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर mg, इट्स वेट acting in the vertically downward direction through its center of gravity, और दूसरे नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग, नॉर्मल रिएक्शन को कई बार कैपिटल एन भी हम लिख देते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आर लिख लो एन लिख लो। सो इट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। और जैसे मैंने अभी आपको बताया ये जो वेट एम जी इसको मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एम जी कॉस थीटा इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ आर एंड एम जी साइन थीटा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब क्योंकि बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है स्मॉल एफ दैट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो देयरफॉर टोटल रिटार्डिंग फोर्स in this case is mg sin theta plus small f. And what is small f over r? Equal to mu, and therefore small f equal to mu into r. और r की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप, equal to mg cos theta, तो यह आ गया mu mg cos theta. तो टोटल रिटार्डिंग फोर्स बन गई mu mg sin theta प्लस स्मॉल f equal to mu mg sin theta, और स्मॉल f की वैल्यू ये जो mu mg cos theta ये पुट कर दी. Now retardation equal to total retarding force divided by mass of the body or the block. m से m कैंसिल हो गया तो g कॉमन आ गया, तो आ जाएगा g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा. और बेटा अगर ये सरफेस स्मूथ हो
फिर म्यू कितना पुट कर देंगे आप 0, तो फिर ए आ जाएगा जी साइन थीटा। अब इसमें क्या है कि मान लो वो कहता है कितनी वेलोसिटी से हमने ऊपर की तरफ पुश किया बॉडी को, तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको यू दे रखा है, आपको वी 0 लेना है और ए लेना है इक्वल टू माइनस जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। आपको थीटा दे रखा होगा, म्यू दे रखा होगा, जी आप 9.8 ले सकते हैं, तो वहाँ से रिटार्डेशन आ जाएगी और फिर एस आपने निकालना है। तो यू कैन यूज़ दी फार्मूला वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू ए एस। अगर वो कहता है टाइम कितना लगेगा तो यू कैन यूज़ दी फार्मूला वी इक्वल यू प्लस ए टी। वो सारे जो फार्मूले इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो यहाँ भी यूज़ होंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का हमने ख्याल रखना है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि कार इज़ मूविंग ऑन ए रोड हॉरिजॉन्टल सरफेस विद दिस मच वेलोसिटी व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो इट कम्स टू रेस्ट। म्यू दे रखा है, या म्यू निकालना है या ये निकालना कितना डिस्टेंस कवर करके रुकेगी। अब देखिए जब कार मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। जब रुक जाएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0। तो कहाँ गई एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, सो दैट इज यूज्ड अप इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर हॉरिजॉन्टल सरफेस में बताया था, वो होती है म्यू एम जी। तो अगर एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कार रुकती है तो हाफ एम वी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एस। तो वहाँ पे जिस चीज़ की वैल्यू भी हमने निकालनी हो निकाल सकते हैं। इसी तरह जैसा मर्जी सरफेस हो हम वहाँ पे कोई भी चीज़ जो पूछी जाए वो निकाल सकते हैं। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन के जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, उसके टॉप से बॉटम तक स्लाइड करने में कुछ टाइम लेती है अगर वो रफ है तो, और अगर वही सरफेस या वैसा ही सरफेस उतने ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का सरफेस स्मूथ होता तो वो कम टाइम लेगी। तो अगर रफ सरफेस मान लो जो स्मूथ सरफेस है उस पर टाइम लेती है टी और रफ सरफेस पे टाइम लेती है एन इंटू टी टाइम लेती है नीचे आने में, तो म्यू जो होगा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा दैट इज गिवन बाई 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वेयर, इसको डालना ब्रैकेट में इनटू टेंजेंट थीटा। ये एन है एन टाइम्स, जैसे मान लो वो कहता है अगर आप सरफेस पे 3 गुना टाइम ज़्यादा लेती है नीचे आने में तो एन 3 हो गया, अगर 4 गुना लेती है तो एन 4 हो गया, 2 टाइम्स लेती है टाइम तो एन 2 हो गया। सो एन आपको पता है, थीटा आपको दे रखा होगा, म्यू निकालना है, और अगर म्यू दे रखा है तो आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन भी निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसके साथ ही बेटा मैंने लॉज ऑफ मोशन के 4 वीडियोस डाले आपके लिए, ये आपने चारों अच्छी तरह देखने हैं और समझने हैं। ये आपके बहुत काम आएंगे इन आंसरिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेदर इन नीट और JEE। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और एक चीज़ और मैंने आपको कहनी है कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ऐसा कर लें, प्लस बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो का टाइम से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।